Am I audible, sir? Yes, Dr. Garima. Okay, sir, start करते हैं. Okay. Very good afternoon to respected dignitaries, governing body members of RAV, Director RAV, Dr. Vandana Siroha ma'am, Gurujans. I welcome you all in another intellectual session of Gyan Ganga webinar series. Today's guest speaker is Dr. Ankur Kumar Tawar, Associate Professor, Divya Jyoti Ayurvedic Medical College and Hospital, Modinagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, who has joined us today in the 244th episode of this knowledge voyage. I, Dr. Garima Singh, on behalf of RAV, welcome you all for today's session. On the onset, we would also like to express our heartfelt gratitude and welcome our mentors who have always been there to guide, motivate, and encourage us for sustenance of this series. Respected Vaidya Shri Devendra Trigunaji, President of GB RAV, respected Vaidya Shri Rajesh Koteja Sir, Secretary, Ministry of Ayush, respected Dr. Vandana Siroha Ma'am, Director RAV. Let us begin the session by seeking the blessings of Lord Dhanvantri. Namami Dhanvantarimaadidevam Surasuravandipapadmam Lokir Jararuk Vaimrityunasham Dhataramisham Vividoshadinam. Om Dhanvantaraya Namah. Now, I would like to introduce today's expert, Dr. Ankur Kumar Tawar sir, who is going to throw light on the topic why sleep loss matters, Ayurvedic insights into sleep deprivation. It is my great pleasure to introduce Dr. Ankur Kumar Tawar sir. Dr. Ankur Kumar Tawar is an accomplished Ayurvedic physician, academician, and researcher with over 14 years of clinical experience. He holds an MD in Ayurvedic Physiology, Kriya Sharir, from Ayurvedic and Unani Tibia College, University of Delhi, and a PhD from the All India Institute of Ayurveda, University of Delhi, with a focus on evidence-based Ayurvedic research. Currently an associate professor at Divya Jyoti Ayurvedic Medical College, Ghaziabad. He specializes in dermatology, reproductive health, and sleep disorders. He has published over 50 research papers, received multiple national awards, and served as a speaker on Lok Sabha TV. Now, I would like to invite Sir to proceed with the lecture. Before we start the session, I request you all to please switch off your mics. Yes, sir. You may start the session, sir. Yes. Thank you, Dr. Garima, for the kind introduction. I also thanks RAV for inviting me on this platform of Gyan Ganga to share my view on the sleep health. Is my slide visible, Dr. Garima? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई स्लीप लॉस मैटर्स, आयुर्वेदा इंसाइट इनटू द स्लीप डिप्रीवेशन। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा हम स्लीप के ऊपर बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड स्लीप डे हर साल बनाया जाता है मार्च के महीने में और मार्च मंथ में, और इस साल का वर्ल्ड स्लीप डे की जो डेट है वो 13 मार्च है 2026। और मैं प्राइमरी स्लीप पे वर्क क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरा पीएचडी का वर्क भी स्लीप पे था, और स्लीप हेल्थ ऐसा टॉपिक है जिसपे आज भी हम फोकस नहीं कर रहे हैं और बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। और बहुत सारे डिसऑर्डर है जो कहीं ना कहीं स्लीप की वजह से हमारे प्रिवलेंस उनका बढ़ रहा है, और हमारे दोस्तों की विशेषण भी स्लीप की वजह से बहुत हैम्पर होती है, बट उस स्लीप हेल्थ को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम स्लीप डे बनाते हैं कि हम इसके बारे में बात करें कि टुडे इज द अवेयरनेस importance of healthy sleep and to promote the prevention and the management of sleep disorder. इस साल की जो हमारी थीम है स्लीप डे की वो है स्लीप वेल लिव बेटर। तो पूरे वर्ड फोकस कर रहा है स्लीप की हेल्थ पे। तो हमारे आयुर्वेद में तो निद्रा अलग से ही एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो हम उस पर फोकस क्यों ना करें। तो व्हाई स्लीप हेल्थ? Sleep is essential to the health and the well-being. Good sleep promotes wellness and resilience, while poor sleep negatively impacts the almost all the aspect of body and mind.
मैं बताना चाहूंगा स्लिप हमारे हर फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे इम्पैक्ट करती है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो, डाइजेस्टिव हेल्थ हो, चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो। स्लिप इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज न्यूट्रिशन एक्सरसाइज। ये मॉडर्न बताता है, मॉडर्न भी स्लिप को इंपॉर्टेंट मानते हैं न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की तरह, जैसे आयुर्वेदा में त्रियोपिस्तम माने गए हैं। स्लिप इज वन ऑफ द थ्री के पिलर ऑफ हेल्थ। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया, मॉडर्न भी ये बनते हैं, मॉडर्न की स्टेटमेंट है, alongside the healthy diet and exercise. And it is the foundation of our physical, mental, and the social well-being. Everyone deserves a good quality of night sleep. स्लीप हेल्थ की स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? तो इंसोम्निया की अगर हम बात करें तो इंसोम्निया का जो प्रिवलेंस है 25.7% फॉर द इंडियन पॉपुलेशन इंसोम्निया। मैं ये वो डाटा बता रहा हूँ जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जो हमारी पब्लिकेशंस कहती है, मगर इससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा रियल डाटा है। अगर मैं ओवरऑल असेस करूँ तो मैं ये मानता हूँ तो 40 to 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इंसोम्निया या स्लीप लॉस। इंसोम्निया इज ऑफन लिंक्ड विद द डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब है एक और डिसऑर्डर है हमारा स्लीप डिप्रिवेशन के, जो स्लीप डिसऑर्डर है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इट अफेक्ट 37% ऑफ द इंडिविजुअल इन इंडिया। हाइयर प्रिवलेंस इज ऑब्जर्व्ड अमंग द पेशेंट विद डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज। हम जानते हैं कि इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल माना जा रहा है, तो अब सोचिए इसका प्रिवलेंस भी कितना बढ़ रहा होगा इसके साथ साथ। ना स्लीप डिसऑर्डर की बात करें तो स्टडी है रूरल साउदर्न इंडिया में, वो बताती है 20 to 34.4% ऑफ द इंडिविजुअल सफर फ्रॉम द स्लीप डिसऑर्डर। साइकेट्रिक पॉपुलेशन की बात करें तो जितने भी साइकेट्रिक पॉपुलेशन, जो साइकेट्रिक कंडीशन है, उसमें 83.4% इंडिविजुअल स्लीप डिसऑर्डर से ग्रसित है, और उसमें से भी 78% इंसोम्निया के सिम्टम्स है। एल्डरली पॉपुलेशन में, बुजुर्गों में 60 ईयर से ज्यादा में 13.45% इंडिविजुअल्स स्लीप डिसऑर्डर से ग्रसित है। क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन इज हाई अमंग द इंडियन यूथ। हम यूथ की बात करें 60 to 30 ईयर्स की एज ग्रुप की, एंड द मिडिल एज एडल्ट, पोटेंशियली ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस। आजकल हम सबका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया रिसेंटली। हमारा डाइटरी हैबिट, हमारा वर्किंग पैटर्न्स, शिफ्ट वर्क, ये कहीं ना कहीं हमारे स्लीप डिसऑर्डर की तरफ लेके जा रहे हैं। सो these statistics highlight the widespread nature of the sleep disorder in India, underscoring the need of increased awareness, timely diagnosis, and effective management strategies. How disturbed sleep nights can disturb our daily life. As a human, we spend one third of our life as a sleep, but lack of good quality of sleep can negatively impact our daily lives and long-term health in many significant ways, such as limiting our ability to make decision and halting our attention span, affecting our general well-being and ability to work productively, increase our risk of developing conditions like heart disease, stroke and diabetes. मैं ये नहीं कहूंगा डायबिटीज के पेशेंट में इंसोम्निया होता है, इंसोम्निया के पेशेंट में भी डायबिटीज हार्ट डिसीज होने की चांसेस बढ़ती है। ये विशेष साइकिल है, इंसोम्निया होगा तो डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज होगा तो इंसोम्निया हो सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट सच एज डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिसीज। जो एल्डरली डिसीज है, डिमेंशिया अल्जाइमर डिसीज, वो भी स्लीप की डिप्रीवेशन से और बढ़ती है, प्रिवलेंस उसका बढ़ता है। सो व्हाट आयुर्वेदा टेल्स अबाउट द स्लीप। फर्स्ट, आयुर्वेदा डिस्क्राइब्स स्लीप एज ए सब पिलर ऑफ लाइफ, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य मिति। These three sub-pillars of life are beneficial for physical strength, bulk, complexion, burn, and the development of the body if followed in a healthy way. And their excessive use, less use, and unhealthy intake lead to disease. So अगर हम इन तीनों उपस्तंभ का सम्यक रूप से पालन करते हैं तो हम हेल्थी रह सकते हैं, और असम्यक रूप से पालन करते हैं तो हमें डिसीज होने की चांसेस होती है। अब आयुर्वेद में चारे चिड़कना, चारे भागभट नहीं, निद्रा को एज ए नेचुरल अर्ज भी माना है, और बोला है कि इट इज वन अमंग द नॉन सप्रेसिबल नेचुरल अर्ज। आचार्य मेंशन निद्रा एज एसेंशियल फिनोमेना व्हिच शुड नॉट बी सप्रेस्ड, उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक वर्ड्स के थ्रू बताया भी है, जिह्वा अंगमर तंद्रा च शिरो अक्षि गौरवम निद्रा विधारणा तत्र स्वप्नम संवाहनन हानि च। मतलब अगर निद्रा की वेग को हम धारण करते हैं तो जिह्वा, अंगमर्द, तंद्रा, शिरो अक्षि गौरवम, ये सब रोग, ये सब सिम्टम हमें दिखाई देते हैं।
और अगर हम सोपन निद्रा लेते हैं और हल्की फुट मसाज या बॉडी मसाज करते हैं तो हम रेस्टफुल स्लीप इन सिम्टम को सबसाइड कर सकते हैं। निद्रा एज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट, आचार्य रोग रत्नाकर ने निद्रा को 4 इनहेरिटेंट इंस्टिंक्ट में से एक माना है, जो क्या हंगर, थ्रस्ट, स्लीप और सेक्सुअल एक्टिविटी। तो निद्रा कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? निद्रा एज इंडिकेटर ऑफ हेल्थ, आचार्य काश्यप ने सुखो स्वप्न, साउंड स्लीप को माना है वन ऑफ द ट्रेड एंड द साइन ऑफ वेल हेल्थ। उन्होंने बोला है सुपर्सन इंद्रियम तम चा सुख स्वप्नम प्रबोधनम। मतलब अगर हम स्वस्थ की डेफिनेशन लेते हैं तो उसमें एक डेफिनेशन ये भी है, सुख स्वप्न होना चाहिए, हेल्थी स्लीप होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए। सो निद्रा इज इम्पोर्टेंस इन फॉर हेल्थ एज वेल एज फॉर द डिसीज। निद्रा इज ए रीजन फॉर हैप्पीनेस एंड longevity. Acharya Chanak mentioned that the untimely sleep, excessive prolonged sleep, prolonged less sleep, led to deprivation of happiness and longevity of the individual. The sleep is taken properly in the terms of quality as well as in terms of quantity to bring the happiness, to bring the longevity in the living beings. हमारी आयु को बढ़ाने के लिए और हमें हेल्दी रखने के लिए इसके लिए बहुत एसेंशियल है। आचार्य ने निद्रा को ट्रीटमेंट भी बताया काश्रेय का। मतलब अगर पेशेंट बहुत दुबला पतला है तो उसमें अच्छी स्लीप हम देके उसकी हेल्थ को हम एनहेंस कर सकते हैं। किसी का वेट लॉस हुआ रिसेंटली तो हमसे अच्छी स्लीप से भी वेट गेन की तरफ ले जा सकते हैं। मतलब वेट गेन की ट्रीटमेंट में निद्रा का यूज किया जा सकता है। आचार्य मेंशन दैट द निद्रा इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल हैविंग द वेट। आचार्य भावनिश mentioned that the sleeping after taking the food reduce the vata and pitta, which are the causative factor of anidra. It enhances kapha and builds the body mass in the healthy way, along with happiness in the life. So sleep is regarded as a key component of the treatment plan. एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, हमें स्लीप को अपने ट्रीटमेंट प्लान में भी डालना चाहिए, क्योंकि स्लीप को हम स्लीप की ट्रीटमेंट की जाए, पेशेंट को उसको हेल्दी स्लीप के बारे में बताया, उसको अवेयर करें, तो कहीं ना कहीं हम उसके डिसीज को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके सिम्टम को रिड्यूस कर सकते हैं। निद्रा फॉर द प्रिवेंटिव अप्रोच, आचार्य मेंशन दैट द दिवा स्वप्न एज ए पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव अप्रोच इन द वेरियस ऋतु एंड सीजन इंडिकेटेड इन समर सीजन। आचार्य ने बताया कि दिवा स्वप्न अगर हमें लेना है तो उसे समर सीजन में ले सकते हैं। दिवा स्वप्न एज ए क्यूरेटिव फैक्टर फॉर मेनी डिसीज लाइक प्रमेह, उरुस्तम एंड ज्वर। इन सब डिसीज फैक्टर भी दिवा स्वप्न हो सकता है। डे स्लीप एंड नाइट अवेकनिंग आर नॉट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो प्रिवेंट वनसेल्फ फ्रॉम इम्प्रॉपर स्लीप इज गुड फॉर द हेल्थ। इफेक्ट ऑफ निद्रा, हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है निद्रा का? हमारे आचार्य चरक ने, अष्टांग संग्रह, अष्टांग ने सबने बोला है, निद्रा आयतम सुखम दुखम पुष्टिकाश्रम बलम अबलम विष्टा क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचम। मतलब उन्होंने कितना अच्छा बताया, इस पूरे एक वर्ष में उन्होंने पूरे फिलोलॉजिकल सिस्टम बता दिए। सुख दुख मीन्स हमारा इफेक्टिव सिस्टम, हमारा माइंड, हमारी मैन का इमोशनल पार्ट। सुख दुख आर द लक्षण ऑफ आत्मा। सुख फेल्ट ड्यूरिंग द आरोग्य, दुख फेल्ट ड्यूरिंग द व्याधि। तो सम्यक निद्रा लीड टू हैप्पीनेस एंड cheerfulness. On the opposite side, asamyak nidra lead to sorrow. So sleep having an impact on the emotional system, on the mental faculty. तो सुख दुख मतलब मेंटल इंपैक्ट है स्लीप का। पुष्टिकाश्रम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पुष्टिकाश्रम both represent the growth and development of the human body. Pushti means healthy body weight, akashram means lean and emaciation. Acharya Shushu described that the person having the normal and the moderate sleep, having moderate physics. So sleep having an impact on the metabolism and digestion at the level of cell, at the level of tissue, at the level of organ system as well. Excessive sleepiness led to overweight and obesity. बल अबल, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, शारीरिक बल, मानसिक बल। बल include two type of बल, शारीरिक and मानसिक। तो sleep impact the strength of the physiological system as well as the function capability of the mind. Vrishta Klivta, effect on the reproductive system. Vrishta means healthy reproductive system, Klivta means unhealthy state of reproductive system. Acharya Shashwat mentioned that the person having the normal sleep contain healthy reproductive life and capable to perform sexual activity. So sleep influence the reproductive system as well. Jnanam Ajnanam. Jnana is knowledge, Ajnana is false knowledge. Samyak Nidra lead to promote the knowledge and Asamyak Nidra lead to obstruction of the knowledge.
So sleep promote higher intellectual faculty like learning, memory, spatial sense and the motor function. वर्ण, आचार्य भाव मिश्र ने स्पेशल बताया कि स्लीप हमारे वर्ण पे भी, स्किन के कॉम्प्लेक्शन पे भी इम्पैक्ट डालती है। तो स्लीप इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजी ऑफ स्किन एंड इट्स अपेंडिक्स। जीवितम अवजीवितम, हमने अब देख लिया स्लीप हमारे कितने रिपोर्टर हमारे सिस्टम पे इम्पैक्ट डालती है। और जीवितम अजीवितम मतलब हमारी लाइफ करती है। स्लीप हैविंग द रिस्टोरेटिव rejuvenating function, sustain the life. So should mention that the person having the moderate and the normal sleep lives 100 years. Through its influence on every physiological system, sleep play an important part in the maintenance of life. So, life of every cell, every tissue, organ and the organ system depend upon the sleep. ये एक फिगर इसके थ्रू मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे स्लीप हमारे सारे फिजिकल सिस्टम पे इम्पैक्ट डालती है। सुख दुख, मेंटल फैकल्टी, इमोशनल सिस्टम, पुष्टि का शरीर, मेटाबॉलिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बल इम्यून, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ज्ञानम अज्ञानम, सेंसर एंड द मोटर फैकल्टी, हायर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, वन फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। और ओवरऑल इन सबको मेंटेन करते हुए स्लीप धातु साम्यता को मेंटेन रखती है। अब हम बात करते हैं टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। हमारे आचार्य ने स्पेशली बताया कि नाइट इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। आचार्य भागवत ने बोला है कि रात का समय ही सोने के लिए उचित है। आचार्य आल्सो स्टेट दैट समवन इज अवेक एट नाइट, अगर कोई दिन रात को जागता है तो उसे उसका हाफ टाइम दिन में सोना चाहिए। तो उन्होंने स्पेशल इंडिकेशन भी दी है, अगर कोई शिफ्ट वर्क करता है तो दिन में कितना सोना चाहिए। हमारे आचार्य ने इस लेवल तक वर्क किया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है स्लीप डिप्रीवेशन, जिसको हम इंसोम्निया से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, मेन डिसऑर्डर है इंसोम्निया। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, insomnia is characterized by difficulty in either initiating sleep, sleep को initiate करने में, maintain the sleep continuity, sleep को अगर आप सोना स्टार्ट कर चुके हैं, आपको नींद आ रही है मगर आपसे कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, and the poor sleep quality, तो आप insomnia से ग्रसित हैं। 10 to 50% of the general population suffer from insomnia, जिसमें से 41% of the women and 32% of the men। अब इसके फैक्टर क्या क्या, अगर मॉडर्न की बात करें तो एज एंड सेक्स, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारे स्लीप डिसऑर्डर एनहेंस होएंगे। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अदर स्लीप डिसऑर्डर, फिजिकल पेन, अगर कोई पेन है तो भी हमें नींद अच्छी नहीं आएगी। स्ट्रेस एंड द अदर मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी में कहीं ना कहीं उपस्थित रहता है, चाहे वो फिजिकल डिसऑर्डर है चाहे मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। मेडिकेशंस एंड इरेगुलर स्लीप शेड्यूल एंड द फॉल्टी लाइफस्टाइल, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज के टाइम में बहुत बढ़ रहा है। एंड older women and the men both are highly predisposed to faulty sleep। और मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक स्टेट आपको दिखाई दे रही है उत्तराखंड की तरफ, जहां पे स्लीप डिसऑर्डर सबसे ज्यादा है। आयुर्वेद में इसके लिए क्या बताया, आयुर्वेद में बताया गया अनिद्रा। अनिद्रा मतलब मतलब नो, निद्रा मतलब स्लीप। तो जब स्लीप ना आए अनिद्रा कंडीशन है। और उसके लिए स्पेशली उन्होंने कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर बताए हैं, जैसे वात प्रकृति, सत्व वृद्धि, तमोक्षय, असुख शैया, मतलब जो आपका जहां आप सो रहे हो वो सैया अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, आपको नींद अच्छी कैसे आएगी। एक्सेसिव व्यायाम, उपवास, धूम, चिंता, भय, क्रोध, एक्सेसिव इम्प्रॉपर एक्सपल्शन ऑफ दोषा थ्रू द पंचकर्मा, एक्सेसिव पंचकर्मा हो गया तो भी हमें स्लीप अच्छी नहीं आएगी। इसके साथ साथ इन्होंने एक नीचे लाइन जो मैं बता रहा हूँ, कार्य कालो विकारश्च प्रकृति वायु रेवच, यहाँ जो कार्य की बात करें, कार्य कालो मतलब काल की जो बात है वो है वाधर्य, मतलब ओल्ड एज में स्वभावतः ही व्यक्ति को नींद कम आती है, ये स्वभाव है, ये एक लॉजिकल फैक्टर है, जैसे एज बढ़ेगी आपको नींद कम आएगी। कार्य की जो बात कर रहे हैं, ये कार्य मिति कार्य और सख्त ना निद्रायांति, मतलब जो कार्य आप कर रहे हो, किसी कार्य में इन्वॉल्व शिफ्ट वर्क कर रहे हो तो आपको निद्रा नहीं आएगी, ये भी एक कारण है। विकार की जो बात कर रहे हैं वो शूलाधीश, जितने भी विकार है जिसमें पेन है, जो हमने अभी बात की थी फिजिकल पेन, उसमें भी हमें निद्रा नहीं आएगी। और वात प्रकृति पुरुष में भी नींद स्वभाव ही नहीं आती, स्वभाव से ही। अब संप्राप्ति क्या है निद्रा की, तो डाइटरी फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर, जो अदर फैक्टर है जो है, और मेंटल फैक्टर, ये सब मिलके क्या करते हैं, ये सत्व को एनहेंस करते हैं, तम को डिक्रीज करते हैं, और दोषा में वात और पित्त दोष को एनहेंस करते हैं और श्लेष्मा को डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मनोवय स्रोतस का जो चैनल्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं हृदय में, जिससे अनिद्रा आती है। उपद्रव क्या बताया चारों ने अनिद्रा की,
तो जो हमने आचार्य अष्टांग संग्रह ने निद्रा नाश अंग मर्द शिरो गर्भ जिम्बिका चाढ़िय अगलानी ब्रह्म अपक्ति तंद्रा रोगश्च वातजा, कि जितने भी रोग है जो बताया आयुर्वेद में, अगर निद्रा नहीं आती, निद्रा नाश होता है, तो पेशेंट को ये सब रोग हो सकते हैं, उपद्रव हो सकते हैं, साइन ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं। अब आयुर्वेद ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है निद्रा के लिए, स्लीप डिस्टर्बेंस के लिए? तो पहला है, आयुर्वेद में हमेशा बताया निदान परिवर्जन। निदान मतलब एटियोलॉजिकल फैक्टर, जिन कारणों से रोग हुआ है उनको त्याग करना, परिवर्जन करना। सो etiological factor must be avoided in order to eradicate the roga. The patient must avoid the etiological cause listed under the nidana. It is necessary to avoid the nidana in order to develop धातु साम्य healthy sleep. अब कुछ हर्बल मैनेजमेंट है, कुछ हर्ब्स है जो अनिद्रा के पेशेंट में, हमने स्लीप डिसऑर्डर्स में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, जैसे अश्वगंधा हो गया, ब्राह्मी हो गया, ज्योतिषमती हो गया, तगर हो गया, तुलसी हो गया, सर्पगंधा, जटामासी, इन सब हर्ब्स को हम यूज कर सकते हैं पेशेंट्स में। कुछ फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदिक, ब्राह्मी वटी, सर्वगंधा घनवटी, मास्यादिक वात, जटामासी हिम, जटामासी वटी, गुड़ पिपली चूर्ण, मास्यादिक घृता। इसमें से जटामासी को स्पेशल निदर्शन बताया गया है, हम कह सकते हैं। और मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, ये सब कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही दी जानी चाहिए, पेशेंट अपने आप यूज ना करें इनको कभी। रोल ऑफ पंचकर्मा क्या है? कौन कौन से पंचकर्मा प्रोसीजर अनिद्रा मतलब निद्रा को लाने में हेल्प करते हैं, अनिद्रा रोग को सबसाइड करने में हेल्प करते हैं? तो पहला है शिरोधारा। शिरोधारा कंटिन्यूअस ऑयल पोरिंग ऑन द फोरहेड, जिसमें तेल धारा, तक्र धारा, शीर धारा हो सकती है। शिरोधारा के स्ट्रेस फैक्टर को कम करता है, जिससे निद्रा को लाने में काम करता है। शिरोमर्दन हेड मसाज, नस्या मेडिकेटेड ऑयल से नस्या, अभ्यंग फुल बॉडी मसाज, शिरोलेपा, कर्णपूर्णा, शिरोपिचु, शिरोवस्ती, ये सब कुछ पंचकर्मा प्रोसीजर है जो अनिद्रा के पेशेंट्स में स्लीप डिप्रिवेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ सतवाद्य चिकित्सा मतलब साइकोथेरेपी, माइंड कंट्रोल थेरेपी, ताकि जो मानसिक निदान है उनको हम हटा सके। पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हमें किसी भी डिसीज में पेशेंट की काउंसलिंग बहुत एसेंशियल होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रोग एक दूसरे से अटैच होते हैं। शारीरिक मानसिक में कन्वर्ट हो जाता है, मानसिक रोग शारीरिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें हमेशा सतवाद्य चिकित्सा पे इंपॉर्टेंस रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब स्लीप हाइजीन आयुर्वेद में क्या स्पेशली बताया गया है? आचार्य चरक ने बताया एप्लीकेशन ऑफ ऑयल ऑन द हेड लीड टू स्लीप। तो वन शुड अप्लाई ऑयल ऑन हेड बिफोर गो टू स्लीप। अगर पेशेंट को नींद कम आ रही है, नींद अच्छी नहीं आ रही, तो सोने से पहले सिर पे मसाज करे तेल की, उससे नींद अच्छी आएगी। सोने से पहले नहाए, स्नान इंड्यूस द स्लीप। पादाभ्यंग करे, पैरों में मसाज करे, स्लीप अच्छी आएगी। बफेलो मिल्क ले, स्लीप इंड्यूसर है। कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट बेड, जैसे हम कहते हैं सुख सैया, वो होगा तो अच्छा होगा। लिसन द म्यूजिक एंड साउंड दैट गिव्स द प्लेजर, ऐसा साउंड ऑफ म्यूजिक लगे इससे आपको प्लेजर फील हो, अच्छा महसूस हो, उससे भी नींद अच्छी आती है। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे पंचकर्मा सेंटर में माइल्ड म्यूजिक चल रहा होता है, या आप जब सोते हैं तो कभी कभार माइल्ड म्यूजिक लगा दो, आपको नींद अच्छी आती है, क्योंकि वो नींद को इंड्यूस करता है। अप्लाई द सेंट एंड परफ्यूम दैट गिव यू प्लेजर, ये सब नींद को इंड्यूस करते हैं। अब मॉडर्न में क्या टिप्स बताइए बेटर स्लीप की? पहला है स्टैब्लिश रेगुलर बेड टाइम इन द वॉकिंग टाइम। आप एक सेट कर लो, सुबह रात को कितने बजे सोना है, दिन में कितने बजे उठना है। इसका स्टैब्लिश करने का फायदा ये होता है ताकि हमारा जो बायोलॉजिकल रिदम है वो सेट हो जाती है, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल रिदम हमारी सेट नहीं है तो हमारे हार्मोन्स का इम्बेलेंस हो जाता है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे रोगों का कारण बनता है। और आज के बिजी लाइफस्टाइल में हम सब रात को मोबाइल यूज करते हैं, स्क्रीन टाइम एनहांस करते हैं। उस स्क्रीन टाइम से क्या होता है, हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि हमें नींद का टाइम हो गया, क्योंकि लाइट जल रही है मोबाइल के सामने। तो हमें लगता है कि हमारी बॉडी को लगता है दिन चल रहा है, तो वो उस हिसाब से हार्मोन सेक्रेट करती है। सो स्टैब्लिश ए रेगुलर बेड टाइम एंड द वॉकिंग टाइम। अलाउ योरसेल्फ टू टेक ए नैप इफ यू आर टायर्ड। अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, थके हुए, नींद पूरी नहीं हो, तो टेक ए नैप। ये नैप बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है इसके लिए अनभिसंधि बोला गया है। अगर आप बैठे बैठे सोते हैं, नैप लेते हैं, तो अनभिसंधि है, ये कफ को नहीं बढ़ाएगा, तो मतलब इस हेल्थ के लिए अच्छा है। एडजस्ट टू ए हेल्थियर लाइफस्टाइल रिगार्डिंग योर सब्सटेंस यूज। ड्रिंक अगर आप करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उससे हटके एडजस्ट करो उस लाइफस्टाइल को अपने। क्रिएट ए कैफीन कट ऑफ टाइम, आपका कैफीन का टाइम कट ऑफ करें। चेंज अप योर बेड टाइम स्नैक्स, आपके बेड टाइम का स्नैक का टाइम है उसको चेंज अप करें। वॉच योर वर्कआउट रूटीन, आपके वर्कआउट रूटीन है उसको देखें।
यूज कंफर्टेबल इनवाइटिंग बेडिंग, वही सुख सैया की बात हो रही है। स्लीप पे फाइंड ए कंफर्टेबल स्लीप टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर रूम को कंफर्टेबल सेट रखे ताकि आपको अच्छी नींद आए, और रूम का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ब्लॉक आउट ऑल द डिस्ट्रक्शन, नॉइस एंड एलिमिनेट एज मच लाइट एज पॉसिबल। लाइट जला के ना सो, जितनी भी नॉइस आ रही है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करे, ब्लॉक करने की कोशिश करे। Reserve your bed for the sleep and sex, avoiding its use for the work and the general recreation. आपके बेड को आप वर्क के लिए यूज ना करें, आपके बेड को आप रिजर्व करें स्लीप के लिए स्पेशली। रेमेडीज फॉर द बेटर स्लीप, फूड विद द कर्ड वाटर, मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, स्वीट स्निग्ध आहार का सेवन करें, मासा एट नाइट, हनी बिफोर गोइंग टू बेड, द्राक्षा, शुगर कैन प्रोडक्ट्स एट नाइट, घी विद द बॉइल्ड मिल्क, boiled with substance having the quality of rejuvenation. अप्लाई द सूथिंग लेप्स एंड द ऑयल ऑन द हेड, आई इन द फेस, जिससे आपको अच्छी नींद आए, बेटर स्लीप आए। ये कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर नहीं है, एक रेमेडीज है जो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं अच्छी स्लीप के लिए। अब लेटेस्ट रिसर्च क्या स्लीप के ऊपर आयुर्वेदा में, तो ये रिसर्च है अश्वगंधा के ऊपर, इफेक्ट ऑफ पिथीनिया सोमनिफेरा ऑन स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस रिलेटेड न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया। ये स्ट्रेस बता रही है अश्वगंधा का यूज एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी है उसकी, एंजाइटी एक्टिविटी, एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी, स्लीप प्रमोटिंग एक्टिविटी भी है अश्वगंधा की। वो कैसे है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमिक पोटेटरी एड्रेनल एक्सिस पे काम करता है, स्ट्रेस फैक्टर कम करता है, सिंपैथेटिक एड्रेनल मेडुलरी एक्सिस पे काम करता है, GABAergic पाथवे पे काम करता है, सेरोटोनिनर्जिक पाथवे पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे फैक्टर को, फिजिकल साथ साथ मेंटल फैक्टर को भी कम करता है। एक और स्टडी जो हमने पंचकर्मा की बात की, feasibility and the pilot efficacy, testing of integrated yoga and the Shirodhara, intervention on clinical symptom, cognitive function and the sleep quality of adults with anxiety disorder. इसलिए ये स्टडी बताती है कि एडिंग ऑफ शिरोधारा टेक्निक्स टू द इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी was feasible and may be useful in improving the executive memory and the sleep quality in the patient, in the adults with anxiety disorders. इफेक्ट ऑफ मास्यादिक वात, जो हमने बताया था कौन कौन सी हम फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, मास्यादिक वात इसमें से, इन प्राइमरी इंसोम्निया, ए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये स्टडी बता रही है कि मास्यादिक वात और तगरादिक वात का कंपेयर किया था, और बोथ द ड्रग्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। Efficacy behind Nasya and the ashwagandha root powder in the primary insomnia in elderly males, a randomized open label clinical study। ये 30 डे की ट्रीटमेंट देती कंबाइंड थेरेपी, उन्होंने देखा था इट इज फाउंड मोर इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी इंसोम्निया इन द एल्डरली कंपेयर विद द अश्वगंधा रूट पाउडर अलोन। मतलब अगर हम अश्वगंधा के साथ भिन्न नस्या देते हैं तो ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, ना कि सिर्फ अश्वगंधा दे इंसोम्निया के पेशेंट। इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया ड्यूरिंग कैंसर कीमोथेरेपी केस रिपोर्ट। अब कैंसर के भी बहुत सारे पेशेंट में कीमोथेरेपी चलती है, आपकी रेडियोथेरेपी चलती है, तो उसमें इंसोम्निया डिसऑर्डर्स ना बहुत कॉमनली एज ए उपद्रव, एज ए आपका एसोसिएटेड डिसऑर्डर के रूप में आ जाता है। तो उस केसेस में भी स्टडी है, एक केस स्टडी है जिन्होंने वातहर द्रव्य यूज किया था, वातपित्थर द्रव्य और इंद्र प्रसाद द्रव्य को स्लीप को इंड्यूस करने में यूज किया, तो पेशेंट की स्लीप क्वालिटी एनहांस हुई थी। इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक ऑयल ड्रिपिंग ट्रीटमेंट, शिरोधारा की बात करते हैं, विद सीसम ऑयल वर्सेस विद द वार्म वाटर ऑन द स्लीप। अब इन्होंने स्टडी की शिरोधारा की वार्म वाटर से और सीसम ऑयल से, रैंडमाइज्ड सिंगल ब्लाइंडेड क्रॉस ओवर पैलेट स्टडी, मतलब एक ही पेशेंट में पहले ऑयल थेरेपी की, फिर सीसम थेरेपी की, सीसम ऑयल थेरेपी, वार्म वाटर थेरेपी। इन्होंने देखा कि सीसम ऑयल शिरोधारा मे बी सेफ पोटेंशियल ट्रीटमेंट टू इंप्रूव द स्लीप क्वालिटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पर्सन विद स्लीप डिसऑर्डर्स। एक और स्टडी है कंपैरेटिव क्लिनिकल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ तगड़ा एंड जटामासी इन द मैनेजमेंट ऑफ अनिद्रा प्राइमरी इंसोम्निया। अब यहाँ स्टडी की गई तगड़ और जटामासी के बीच में, both the groups show the good result but तगड़ show better result in comparison to जटामासी group। इन्होंने देखा कि दोनों ग्रुप्स काम करते हैं, मगर तगड़ ज्यादा काम करता है जटामासी के मुकाबले। Influence of yoga and ayurveda on self-rated sleep in the geriatric population। yoga practice improve the different aspect of sleep in a geriatric population। हमने बताया था कि काल की बात हो रही है, जो वृद्धावस्था उसमें इंसोम्निया बहुत कॉमनली मिल सकता है, उनमें स्लीप डिप्रिवेशन मिल सकती है। तो योगा में जो स्लीप डिसऑर्डर है उसको इंप्रूव करने में योगा बहुत हेल्पफुल है, ये स्टडी ये बता रही है।
एक और स्टडी है एफिकेसी एंड द सेफ्टी ऑफ अश्वगंधा रूट पाउडर इन इंसोम्निया एंड एंजाइटी, ए डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी। ये स्टडी बताती है कि अश्वगंधा इज ए नेचुरल कंपाउंड विद स्लीप इंड्यूसिंग पोटेंशियल, well tolerated, improve the sleep quality and the sleep onset latency in the patient with insomnia. At a dose of 300 mg extract twice a day, it could be potentially used to improve the sleep parameter in patients with insomnia and anxiety. मतलब अश्वगंधा को हम स्लीप पैरामीटर्स को इंप्रूव करने में यूज कर सकते हैं। Efficacy and tolerability of ashwagandha root extract in the elderly for the improvement of generalized well-being and sleep. A prospective randomized double-blind placebo control study. ये सब PubMed में इंडेक्स जर्नल्स में पब्लिश आर्टिकल्स हैं जो मैं शो कर रहा हूँ। The study outcome suggests that the ashwagandha root extract was efficient in improving the quality of life, sleep quality, and mental alertness, as self-assessed by the elderly participants. Efficacy of Masiadi Ghan capsule insomnia disorder, a randomized control trial. Masiadi Ghan capsule is better than the Tagal Churna in insomnia disorder, and both show anxiolytic and antidepressant effect. Ayurveda therapy for insomnia case studies, case series. वहीं शिरोधारा की जो हमने बात की थी पंचकर्म में, शिरोधारा with ब्राह्मी oil may be beneficial for moderate to severe insomnia. अब स्पेशली ब्राह्मी ऑयल की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मी ऑयल से शिरोधारा ज्यादा बेनिफिशियल है। एक और स्टडी है अश्वगंधा का जो के कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, ट्राइथिलीन ग्लिसरॉल, उसको बताया गया स्लीप इंडक्शन में काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है। सो ट्राइथिलीन ग्लाइकोल is an active sleep inducing component of ashwagandha leaves and could potentially be useful for insomnia therapy. A randomized double-blind placebo-controlled trial investigating the effect of Ocimum tuniflorum extract on stress, mood, and sleep in adults experiencing the stress. The results show that the 8 week of supplementation with the Tulsi extract may reduce the objective and the subjective measure of stress, improve the subjective measure of sleep quality. A randomized controlled trial of the effect of traditional herbal supplement on the sleep onset and insomnia. अब एक हर्बल सप्लीमेंट था जिसमें जटामासी, रोज पेटल, मस्क रूट, हर्ड लीफ, गुडुची, अश्वगंधा, पिपली, सोट, शंख पुष्पी और मुलेठी का यूज किया गया था, उसको देखा गया था, उसमें स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया में बहुत अच्छा काम किया। अब मैं यहाँ कुछ केस भी अपने बताना चाहूंगा। मेरा पहला केस है, क्रॉनिक इंसोम्निया का पेशेंट था, इन यंग अडल्ट फीमेल, 38 इयर्स की फीमेल थी, होम मेकर थी फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। उसको नॉकटर्नल अवेकनिंग थी, डे टाइम स्लीपनेस थी फॉर द पास्ट 6 मंथ। प्रीवियसली नॉर्मल स्लीप थी, सिम्टम प्रोग्रेसिवली वर्सन होते गए टाइम के साथ साथ। उसको स्ट्रेस फैक्टर इन्वॉल्व था, फैमिली इशू की वजह से इरेगुलर स्लीप शेड्यूल था। प्रीवियस ट्रीटमेंट जो ले रही थी पास्ट 2 मंथ से मेडिकल गाइडलाइंस ले रही थी और उसने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, सब नॉर्मल थी। तो पेशेंट इनिशियली एक्सपीरियंस माइनर डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep and maintaining the sleep for a short period. Over that time, her condition deteriorated, leading to severe sleep disruption. At the time of presentation, she reported being unable to sleep for more than 3 hours per night, with frequent awakening throughout this limited sleep periods. Despite the severity of her symptoms, the patient did not seek medical attention for the first 4 months of her condition. मतलब 4 महीने से उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, वो अब सोचती रही ठीक हो जाएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग क्या थी? Upon the physical examination, the patient appeared fatigued, but was otherwise in good general health. Her vitals are within the normal limits. No sign of thyroid dysfunction and other endocrine abnormality. The patient reported feeling anxious, stress, particularly when discussion her family situation. टाइमलाइन, जब मंथ 0 की हम बात करें, माइल्ड स्लीप डिस्टर्बेंस थे, 4 मंथ तक वर्स हो गए सिम्टम्स उसके, लिमिटेड हो गई स्लीप 3 आवर्स पर नाइट विद फ्रीक्वेंट इंटरप्शन। 4 to 6 मंथ में शी बिगन कंसल्टिंग द डॉक्टर। 6 मंथ में हमारे पास आई थी। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या थी? कोई मेडिकल कंडीशन उसकी कोई खराब नहीं थी, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी थायराइड, डायबिटीज, बीपी की और शुगर की। हर जिस इन्वेस्टिगेशन थी विद इन द नॉर्मल लिमिट्स थी। तो हम सजेस्ट कर सकते थे कि इंसोम्निया वाज नॉट लाइकली ड्यू टू द अंडरलाइंग फिजिकल हेल्थ इशू,
कोई भी हेल्थ इशू नहीं था कि हम ये क्लियर कर सकते थे। तो हमने ट्रीटमेंट क्या किया पेशेंट का, स्लीप हाइजीन को एडुकेट किया पेशेंट को, स्लीप मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई, माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताई, शॉर्ट टर्म फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन शिरोधारा दी। अब शिरोधारा ने क्या किया पेशेंट का, उसने रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स स्टार्ट किया, उसने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया, प्रमोट किया रिलैक्सेशन, रिड्यूस करा स्लीप को, मेलाटोनिन रेगुलेशन किया, हार्मोनल जो आपका डिसबैलेंस हो गया था हार्मोन्स का उसको उसने मेंटेन किया, मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल। और इसने माइंड को काम किया और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इंसोम्निया के सिम्टम को रिड्यूस करने में। सर्कुलेशन इंप्रूव हुई पेशेंट की, ब्रेन फंक्शन एनहांस हुई, स्लीप क्वालिटी एनहांस हुई, दोषा बैलेंस हुए, वाता दोषा स्पेशली, स्ट्रेस रिडक्शन हुआ, कोर्टिसोल लेवल पेशेंट का रिड्यूस हुआ, क्योंकि माना गया है शिरोधारा ना स्ट्रेस फैक्टर को कम करती है, कोर्टिसोल के लेवल को कम करती है जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्लीप प्रमोटिंग एरिया को एक्टिवेशन मिली, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेशन मिली, जिसकी वजह से ओवरऑल शिरोधारा ने पेशेंट की स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी को एनहेंस करने में हेल्प की। कंक्लूजन क्या आया, Ayurveda provide a holistic approach to managing the insomnia through herbal remedies, dietary modification, and lifestyle correction, and Panchkarma therapy like Shirodhara. मेरा एक आर्टिकल पब्लिश है शिरोधारा के ऊपर जर्नल में, तो मैं वो भी यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ शिरोधारा ऑन द बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ स्ट्रेस, केस स्टडी। हमने बताया ना शिरोधारा कैसे स्ट्रेस को कम करती है, इस आर्टिकल में सब लिखा है कि कैसे शिरोधारा स्ट्रेस हार्मोन पे, बायोलॉजिकल मार्कर से जो स्ट्रेस के उस पे काम करती है। और ये एक हैप्पीएस्ट हेल्थ की वेबसाइट है, उसमें भी मेरा आयुर्वेदिक व्यू फॉर हेल्दी स्लीप पब्लिश हुआ था। और ये स्लीप जर्नल है ऑक्सफोर्ड का, उसमें भी मेरा आर्टिकल पब्लिश है, स्लीप डिप्रीवेशन एड्स एन आई इन द टीम। ये आर्टिकल ये बता रहा है कि स्लीप डिप्रीवेशन हमारे टीम वर्क में कैसे आई को, ईगो को एनहेंस करती है, ईगो को लाती है। तो कहीं ना कहीं स्लीप मेंटल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल दोनों पे करती है। अब एक दूसरा केस है मेरा इंसोम्निया का, 44 इयर्स का ओल्ड मेल है, जटामासी जिसमें दिया गया था। और पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या थी, डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep, frequent nighttime awakening, non-restorative sleep for the past 6 months, मेडिकल हिस्ट्री कोई सिस्टमेटिक इलनेस नहीं थी, लाइफस्टाइल सेडेंटरी जॉब थी, मॉडरेट स्ट्रेस लेवल था, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल था। प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या था, पेशेंट ने ओवर द काउंटर स्लीप एड्स ले रहा था, लेफ्ट हैंड मॉडिफिकेशन की थी तो माइल्ड इंप्रूवमेंट थी। मेंटल स्टेटस इंक्रीज इरिटेबिलिटी, फटीग, रिड्यूस द कंसंट्रेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटीज। और इसका पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स है, सब्जेक्टिव पैरामीटर स्लीप की क्वालिटी को चेक करने के लिए, वो 12 था। हमने इसमें ये भी चेक किया था। इंटरवेंशन क्या दी थी, जटामासी चूर्ण दिया था 3 ग्राम ट्वाइस अ डे विद वार्म मिल्क बिफोर बेड टाइम फॉर 8 वीक। एडवाइज टू मेंटेन द प्रॉपर स्लीप हाइजीन, फिक्स बेड टाइम किया था, रिड्यूस द स्किन एक्सपोजर, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ऑब्जर्वेशन आउटकम क्या मिले, सेकंड वीक में माइल्ड इंप्रूवमेंट मिली स्लीप लेटेंसी में, रिड्यूसिंग द टाइम टू फॉलो स्लीप, डिग्री इरिटेबिलिटी। फोर्थ वीक में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ नाइट टाइम अवेकनिंग में, इंप्रूव एनर्जी लेवल ड्यूरिंग द डे। एट्थ वीक में उसकी स्लीप की ड्यूरेशन इंप्रूव हुई, क्वालिटी इंप्रूव हुई, पीएसक्यू स्कोर जो 12 था 5 तक चला गया, मतलब गुड क्वालिटी स्लीप की कैटेगरी में वो आ रहा था। नो एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है जटामासी का, वो मिथ्या माना गया है, निद्राजन माना गया है, न्यूरोप्रोटेक्टिव न्यूरोमाइन टॉनिक के रूप में काम करता है, ये गाबा रिसेप्टर पे मॉड्यूलेट करता है जो एंजियोलाइटिक और सेडेटिव इफेक्ट देता है। स्ट्रेस रिलीविंग इफेक्ट है इसका, ये हाइपोथैलेमिक पोटेटरी एड्रेनल एक्सिस पे काम करता है, माइंड को काम करता है। सेरोटोनिन पे एक्ट करता है, डोपामिन लेवल को रेगुलेट करता है, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, फ्री रेडिकल्स की जो सेल डैमेज हुई है उसको प्रोटेक्ट करता है न्यूरॉन्स को, उससे इंप्रूविंग द ओवरऑल स्लीप आर्किटेक्चर। कार्डियो प्रोटेक्टिव फैक्टर इसका सर्कुलेटरी बेनिफिट है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, कॉग्निटिव रिलैक्सेशन देता है, बेटर स्लीप देता है। इसके साथ साथ बीपी में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है क्योंकि माइंड की रिलैक्सेशन कर रहा है। So Jatamacy Churn demonstrated the significant efficacy in the improving the sleep quality in the middle-aged male with chronic insomnia. The herbs having the sedative, anxiolytic, adaptogenic properties contribute to improve sleep onset, maintenance, and the overall well-being. Jatamacy can be considered as a natural alternative for managing the primary insomnia. अब why to choose Jatamacy and why to choose Shirodhara? शिरोधारा जो मेरा पर्सनल है, मैं ये मेरा पर्सनल कॉन्सेप्ट है, मैं ये सोचता हूँ कि हाई स्ट्रेस लेवल हो, पेशेंट हाइपर एक्टिविटी हो, नर्वस एक्जुएशन हो गया, तो आप इंसोम्निया सीवियर तो शिरोधारा का यूज करें। और मॉडरेट या क्रोनिक है ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है तो आप
रेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से तो जोटामासी को यूज कर सकते हैं। अब के मैसेज हमारा, क्योंकि स्लिप डे आ रहा है, हम सब जानते हैं 13 मार्च को। के मैसेज क्या है? स्लीप इज ए क्रिटिकल पिलर ऑफ हेल्थ, लाइक द न्यूट्रिशन द फिजिकल एक्टिविटी। जैसे आयुर्वेद मानता है कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, वैसे ही बॉडी मानता है न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज और स्लीप। ये 3 पिलर्स है लाइफ के, सब पिलर्स है लाइफ के। तो स्लीप क्या करती है? प्रोमोट करती है ब्रेन हेल्थ को, रिसाइकिल करती है ओल्ड सेल को, एनर्जी लेवल को एनहेंस करती है, इम्यून हेल्थ को बढ़ाती है मॉडर्न के हिसाब से, क्लियर वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड मेमोरी एंड लर्निंग में हेल्प करती है। Take a pledge, sleep is essential to health and we make it a priority. Take home message आज का क्या है हमारा? Do you feel satisfied with your sleep? If no, search the reason, correct it. अब हमारे भगवान विष्णु के लिए बताया गया है कि एक टाइम पीरियड होता है जब भगवान विष्णु सो जाते हैं, जब मानते हैं कि मैरिज नहीं हो सकती, योग निद्रा का जो टाइम होता है। तो जब मैं पर्सनली कहूँगा, जब हमारे भगवान को सोने की जरूरत है, वो भी सोते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल, हमें भी नींद की इतनी एसेंशियलिटी है। तो सो इसी के साथ मैं अपनी पीपीटी को खत्म करना चाहूंगा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब मैं निद्रा रूपी देवी को नमन करता हूँ जो हम सबके अंदर विद्यमान है। सो इट इज ए टाइम टू थिंक अबाउट योर स्लीप एज ए बिगिनिंग ऑफ आवर टुमारो rather than the end of our today. Thank you. Thank you so much, sir. Now, if anyone is having any questions, you may please ask to sir. Do we have any questions? Thank you so much, sir. On behalf of the organizing committee, I would like to thank Dr. Ankur Kumar Tanwar, sir, for delivering such insightful lecture. Now, I would like to extend my sincere gratitude to our mentor, Vaidya Devin Trigunaji, President GBRAV, for his continuous support, guidance, and blessings. I thank our director, Dr. Vandana Siroha ma'am, who is the guiding force for all the events at RAV. I would also like to thank Vaidya Rajesh Koteja, sir, Secretary, Ministry of Ayush, for his participation and encouragement in all our endeavors. Most importantly, I would like to express heartfelt thanks to all the gurus, shishyas, and other scholars who, with their presence and active contribution, make this webinar a successful one. Last but not the least, I thank each member of the RAV organizing team who work behind the stage to make this event a successful one. Thank you, sir. Thank you.